قدوس رب الفاظ واپس پانی ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا آج کے اس دن کے لیے خدا اور اس گھڑی کے لیے خدا جو تیرے ہمیں بخش دے خدا اور خدا اب جو خدا تیرا پاک کلام خدا تیرا بندہ شیئر کرے خدا آج کا پاک کلام خدا میرے لیے ہو خدا آج کا پاک کلام خدا سب سننے والوں کے لیے ہو خدا بڑی برکت دینا خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا بہت روح جانے بچ سکے خدا ان کو شفا ملے خدا برکت ملے خدا اپنے بندہ کو خدا اپنے ہاتھوں میں دے خدا اپنے ہاتھوں میں لے لے خدا نے اپنے بندہ کو خدا بڑی برکت عنایت فرما خدا او یس خدا جب وہ خدا بولے خدا پاک روح کا مسا اس پر اترے خدا او یس خدا ہاللویا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں بس یسوع کے نام سے آمین۔ اب ہم خدا کے بندہ پاسٹر شہزاد کو دعوت دیں گے وہ آئے اور پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پاسٹر شہزاد Hallelujah, hallelujah, praise, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر شہزاد نعیم اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز بڑے آنر کی بات ہے کہ آج خداوند نے ایک دفعہ پھر مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور خداوند کے زندہ بابرکت اور زندگی بخش پاک کلام کی منادی کروں۔ آج کے ہمارے پاک کلام کا جو مضمون ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے موجودہ صورتحال لاک ڈاؤن بائبل مقدس کے عین مطابق اور مسیح یسوع کی آمد ثانی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کلام کے عین مطابق اور مسیح یسوع کی آمد ثانی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج دو حوالہ جات کو ہم آج کے موضوع کا مرکز بنائیں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 21واں باب 25ویں آیت سے 36ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان باقی نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے کھڑے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تو تم آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک
ये सब बातें न हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रोए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। एक और हवाला हम देखेंगे, यसाया नबी का सहीफा, उसका 26वां बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक कि गजब टल ना जाए। क्योंकि देखो, खुदावंद अपने मुकाम से चला आता है, ताकि जमीन के बशिंदों को उनकी बदकिरदारी की सजा दे, और जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आज दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल, खौफो हरास, अफरा तफरी, परेशानी का आलम, आफत का आना, वबा का टूटना, इस बात का रिमाइंडर है, इस बात की अलामत है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हमारा खुदावंद इस कदर मेहरबान, रहमदिल और तरस से भरा हुआ है। वो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है, वो हमसे बेपनाह प्यार करता है, और वो जिससे प्यार करता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसे बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है, ताकि हम अपनी बुरी रवशों से बाज आ जाएं। क्योंकि वो किसी गुनहगार की मौत नहीं चाहता है, वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। इसीलिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो हर आने वाली आफत से पहले हमें आगाह करता है, और इसके साथ साथ निकलने का रास्ता भी दिखाता है और एहतियाती तदाबीर भी बताता है। ये वायरस जो आजकल जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं, ये वायरस, जैसे कि मैंने पहले हिस्से में लास्ट संडे में मैंने बताया था कि ये वायरस चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ, जो पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन खुशी की खुश आइंद बात यह है कि आज चाइना के अंदर इस वायरस पे काबू पा लिया गया है, और इसका सेहरा पाक कलाम के सर पे है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की दी हुई तालीमात, बाइबल मुकद्दस की दी हुई गाइडलाइन के पे अमल पैरा होकर ही हम इस पे काबू पा रहे हैं, और इस पे फुली तौर पर काबू पा सकते हैं। दो बातें हैं जो आज हमारा टॉपिक भी है, उन पे आज हम मुख्तसर गौर करेंगे। पहली बात कि ये जो हालात हैं, ये जो करंट
सिचुएशन चल रही है, ये जो अफरा तफरी का आलम है, दुनिया परेशान है, खौफ के अंदर है, खौफो हरास फैला हुआ है, ये उसकी आमद की निशानियों में से एक निशानी है। गौर कीजिए, कलाम बयान करता है कि अंजीर के दरख्त और बाकी दीगर दरख्तों पे गौर करो कि जो ही उनसे कोंपलें निकलती हैं, पत्ते या फूल निकलना शुरू होते हैं, तो तुम खुद ही गैस कर लेते हो, अंदाजा लगा लेते हो, या तुम्हें एक इंडिकेशन मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, अलर्ट मिल जाता है, और तुम ये कहना शुरू हो जाते हो पत्तों को देखकर, कोंपलों को देखकर कि अब गर्मी क्या है, नजदीक आ गई है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा ही मेहरबान है, और उसका इंसान को समझाने का जो तरीका है वो हमेशा ही आसान और बिल्कुल इजी रहा है। वो इसलिए ताकि इंसान जो है वो बाआसानी बात को समझ जाए। इसी तरह उसने फरमाया कि जैसे ही तुम इन हालात को देखो, जिस तरह अंजीर के दरख्त और दीगर दरख्तों से तुम कोंपले को देखकर गैस कर लेते हो, तुम्हें आइडिया या इशारा मिल जाता है, इसी तरह अगर जब भी तुम इस तरह के हालात को देखो तो तुम अंदाजा कर लो या तुम्हें ये इशारा मिल जाए कि उसकी आमदे सानी नजदीक है, या वो उसकी बादशाही बिल्कुल करीब आ चुकी है, या वो दरवाजा पर खड़ा है। याद रहे कि ये वायरस जो दुनिया में आया है, ये जो वबा जो फूटी है, ये दुनिया का खात्मा नहीं है। ये वायरस खुदा के फजल से बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और सब कुछ बहाल हो जाएगा। तमाम अदारे बहाल हो जाएंगे, तमाम हर तरह का जो खौफ या ये जो परेशानी का जो आलम है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा खुदावंद के फजल से, और ये वायरस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और ये वायरस मसीह की आमद की, जैसे मैंने पहले बताया है, कि एक निशानी है, एक अलामत है। ये इसी तरह मैं इसको कहूंगा कि जैसे ये किसी की आमद से पहले दर्दों का लगना बहुत जरूरी है, ये एक तरह की बर्थ पेन है, ये लेबर पेन है, कि जैसे ही किसी की आमद होती है इस दुनिया में, तो उससे पहले जो पेन का लगना, दर्दों का लगना, लेबर पेन का होना बहुत जरूरी है। ये समझ ले इसी तरह ही है कि एक अभी जो दर्दें हैं, जो पेन है, ये तकलीफ जो है, इसका आगाज हुआ है। ये मसीह की आमद का आगाज है, ये मसीह की आमद का बिगनिंग का दौर है। उसकी दोबारा जो उसने वादा किया था, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, उसकी आमद सानी का, दूसरी आमद का आगाज हो चुका है। आज दुनिया इस वायरस की वजह से डर के अंदर है, खौफ फैला हुआ है, परेशानी का आलम है, लेकिन मेरे अजीजों, तसल्ली का पैगाम ये है, खुशी का पैगाम ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, अमन का बानी, सलामती का सरचश्मा आपके साथ है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि उसने आपकी खातर, उसने पूरी दुनिया की खातर सलीब पर अपनी पाक जान का फिदिया दिया है, और उसके पाक जान का फिदिया देने की बदौलत ही, उसके पाक लहू बहाने की बदौलत ही आज हम आजाद हैं, आज हम बहाल हैं। ये दुनिया में जो हालात आ जाना, आजमाइशें आ जाना, ये जो उसका, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए है। उसका पाक कलाम बयान करता है कि उसका जो कहर है ये दम भर का है, ये बहुत थोड़े वक्त का है, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए जो आजमाइश है, ये बाज दफा हमारे जिंदगी में हालात, आजमाइश, मुश्किल इसलिए भी आने देता है ताकि हम और उसकी कुर्बत में आ जाएं, ताकि हम और उसकी नजदीकी को हासिल कर लें। वो फरमाते हैं कि खौफ न कर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं।
मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तुझे किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, तुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि दाऊद की तरह यह कहना चाहिए, अगर चाहे मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से भी हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। इसलिए नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सलीब पर आपके लिए अपनी पाक जान का फिदिया दिया है, अपनी पाक जान दी है, अपना पाक लहू बहाया है। इसलिए बहाया है ताकि वो आपको मौत के मुंह से निकाल ले और जिंदगी में दाखिल करे, ताकि आपको इस कोरोना वायरस जैसी वबा से, इस आफत से, इस बला से आजादी दे और आप दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। दूसरी बात, मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन। चूंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट हमारे साथ रहती है। खुदा का कलाम बयान करता है और हमारी रहनुमाई भी करता है, और इसीलिए वो आफत के आने से पहले हमें आगाह भी करता है और हमें गाइडलाइन भी देता है कि हमें किस तरह बच सकते हैं और कैसे महफूज हो सकते हैं। वो हमें इसके मुताल्लिक पूरी गाइडलाइन देता है कि अब आपने आफत के अंदर से निकलना कैसे है। कलाम बयान करता है कि जब भी कोई गज़ब इलाही, कोई आफत, कोई वबा फूटे, तो फिर अपने आप को घर के अंदर बंद कर लो, कुछ वक्त के लिए अपने आप को छुपा लो, जब तक कि कहर टल नहीं जाता है, जब तक कि ये आफत चली नहीं जाती है, जब तक ये वबा खत्म नहीं हो जाती है। तो अपने आप को क्या करो, अपने घर के अंदर छिपा लो। जदीद साइंस जो आज सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, जदीद साइंस जो आज आइसोलेशन की बात कर रही है, मेडिकल साइंस जो आज लॉकडाउन की बात कर रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने तो हमें पहले ही इसके बारे में आगाह कर दिया हुआ है। बाइबल मुकद्दस ने कलाम पाक में खुदा के जिंदा बबरकत और जिंदगी बख्श पाक कलाम ने तो हमें इसके बारे में पहले ही गाइडलाइन दे दी है, हमें बताया हुआ है। अहबार की किताब उसका 13वां बाब आप पढ़ लें, जिसमें वाजिया तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ जाए जिससे एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होने का खदशा है, तो काहिन क्या करे, काहिन उसको चेक करे। वो डायरेक्ट जो है कोरोना का जिक्र नहीं है, लेकिन सिमिलरली डिजीज है, कोड का जिक्र है, और ये ऐसी ही बीमारी है, ऐसी एक वबा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी जो है वो मुंतकिल हो जाती है। लिखा है कि जो काहिन है वो उसको एग्जामिन करे, चेक करे, और उसको क्या करे, 7 दिन के लिए क्या करे, बंद कर दे, और 7 दिन के बाद, बंद करने के बाद दोबारा उसको चेक करे। अगर वो रिकवर नहीं हुआ है तो 7 दिन के लिए और उसको बंद कर दे, और उससे जो मिलना जुलना जो है वो छोड़ दें। अगर आपने उससे बातचीत भी करनी है तो ऐसा लिंक इस्तेमाल करना है कि आप उससे दूर रहें, उससे हाथ मिलाना छोड़ दें, उससे बातचीत करना छोड़ दें। और ये कलाम के मुताबिक है, और ये कलाम ही हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम अपने घरों में रहें जब तक कि ये बला टल नहीं जाती है। आज बहुत सारे ईमानदार भी हैं ऐसे जो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है, जो कलाम को अपने मतलब के लिए, अपने एंगल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर जो खादमीन हैं और ईमानदार लोग हैं, जब उनसे बात किया जाए तो वो भी कहते हैं नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो ईमानदार लोग हैं, खुदा की खिदमत गुजार हैं, हमें कुछ नहीं हो, हम खुदा के बंदे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ो, खुदा के बंदे हम ज़रूर हैं, ये बहुत अच्छा है, खुदा ने आपको अगर इस कदर ज़बरदस्त ईमान दे रखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ खुदा ने हिकमत से भी नवाजा हुआ है।
अगर आप हिकमत से काम नहीं लेंगे, अगर आप जानबूझ के, जब आपको पता है कि बाहर आग जल रही है और आप जानबूझ के आग के अंदर जाएंगे, तो आग आपका लिहाज नहीं करेगी, वो भस्म कर देगी। अगर आप जानबूझ के ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं और ट्रेन आपका लिहाज नहीं करेगी, वो आपको कुचल डालेगी। लिहाजा ये है कि खुदा ने आपको हिकमत अता फरमाई हुई है और अक्ल से भी नवाजा हुआ है, और खुदा को इस तरह के चैलेंजेस नहीं करने चाहिए कि हम खुदा के बंदे हैं। जो सेफ्टी गाइडलाइन है, जो प्रिकॉशंस हैं, ये खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, बाखूबी हमें इससे के बारे में तालीम देता है कि हमें अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कि जब वबा आए, जब हालात ऐसे आए, जब कोई आफत आती है, जब कोई वबा आती है, तो हमें अपने आप को लॉकडाउन कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। आज हुकूमतें भी लॉकडाउन की बात कर रही हैं, घरों में रहने की हदायत दी जा रही हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी हाइजीन की बात कर रही हैं, सेफ्टी गाइडलाइन की बात कर रही हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ किसने बताया? ये बाइबल मुकद्दस ने ही तो हमें बताया है। तो अच्छा है कि हम, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पाक कलाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। तो अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और ऐसी सूरत हाल में हम डरे नहीं, हम पैनिक ना हों, बल्कि ईमान का दामन थामे रखें और हिकमत अमली और दानिशमंदी का मुजाहरा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, जो पाक कलाम हमें गाइडलाइन देता है, जो हुकूमतें जिनके ताबिया रहने के लिए पाक कलाम हमें फरमाता है, हमें उनके भी ताबिया रहना चाहिए और हमें इन हदायत पर अमल करना चाहिए। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।